Good morning, students. Welcome to your JK class. Today we are going to start our fourth chapter, The Magic of the Northeast. The northeast of India is, along with Kashmir and Kerala, the most beautiful part of our country. It comprises the Himalayas, state of Sikkim, and the states referred to the Seven Sisters: Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, and Tripura. So in this chapter we are going to study about the states of northeastern India, which are quite beautiful and hilly. And along with this we are going to study the Seven Sisters, the states which are called Seven Sisters, which are also in the northeastern part of India. So let's come to the chapter. Join us as we take a peep into the scenic beauty and the rich culture of this state. Fill in the blanks. So we are going to look up the beauty of these states along with filling these blanks. The largest riverian island in the world located on the bank of, first one is Brahmaputra. Write down Brahmaputra. Riverian island मतलब ऐसा आइलैंड जो रिवर्स से भरा पड़ा हो. आप ये आइलैंड देख सकते हैं, इसके बीच में से काफ़ी सारे रिवर्स निकल रहे हैं क्योंकि ये आइलैंड रिवर्स के बीच में बना हुआ है. इट्स नॉट इन द सी, इट्स इन इट बिटवीन द रिवर्स. तो ये आइलैंड जैसा ही हो गया क्योंकि ये मेन लैंड से थोड़ा अलग है. द नेम ऑफ दिस आइलैंड इज मजोली आइलैंड. नाउ सेकंड पॉइंट. ड्यू टू द एनुअल flood and constant land erosion. So the first blank is flood, FLOOD, and the second one is erosion, EROSION. Majuli today is only a fraction of its original size. हर साल फ्लड और सोइल इरोजन की वजह से मजूली आइलैंड की जो एरिया है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जा रहा है. At Majoli, you will find many rare and endangered. Write down endangered. ENDANGERED. Endangered species like greater adjutant stork, pelican and the whistling teal. So इस आइलैंड पे काफ़ी endangered और rare species. Endangered मतलब जो खतरे के लेवल पे है, ऐसे स्पीशीज़ आप देख सकते हो. उनमें से कुछ के नाम यहाँ दे रखे. करंटली इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज साइट. तो मजोली आइलैंड को एक हेरिटेज साइट, एक टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है. मतलब अभी एक हेरिटेज साइट नहीं है, पर उसके बारे में सोचा जा सकता है. ऐसी लिस्ट में यूनेस्को ने मजोली आइलैंड को डाल रखा है. फेमस फॉर डिफरेंट extratas on monasteries. Now ये अपने stratas और monastery के लिए famous है. Next one, Hornbill Festival. So you can see this is an Hornbill Festival. Hornbill is a bird name. You can see the bird here, and on the name of this bird there is a festival. Let's come to the fill in the blanks. Held annually in December in the state of Nagaland. Write down Nagaland. Named after a beautiful bird, the Indian hornbill. Indian hornbill. The rich culture of the state is on display through food and song and डांस. सो ये दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल, और ये किसके नाम पे पड़ा है? इंडियन हॉर्नबिल के नाम पे इन नागालैंड स्टेट. और इस फेस्टिवल में सॉन्ग्स होता है, फूड आइटम्स होते हैं और डांस होता है. यू कैन सी दिस पीपल डांसिंग. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. Kailang Rock. You can see Kailang Rock, located near Merang in Meghalaya. The first filling in the blanks is Meghalaya. It is a single massive steep dome shaped red granite rock. It is a granite rock.
ये जो रॉक है ये डोम शेप्ड है, काफ़ी बड़ी है और ग्रेनाइट की बनी है, दैट्स वाई इट लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दैट एरिया। ये डोम अलग से ही दिखाई देता है। इट इज़ अ हॉट स्पॉट फॉर रॉक क्लाइंबर, और ये रॉक क्लाइंबिंग यू नो एज एन एडवेंचर स्पोर्ट्स, और जिनको इसका शौक होता है उनके लिए एक हॉटस्पॉट एरिया काफ़ी पॉपुलर है। लोग यहाँ पे काफ़ी भीड़ में आते हैं इसे क्लाइंब करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन, चेरो डांस। नेक्स्ट वन इज चेरो डांस, परफॉर्म्ड इन मिजोरम। So this dance is performed in the state of Mizoram. Next one, bamboo poles. Write down here bamboo, B-A-M-B-O-O. Bamboo poles are used to create formation on the ground. You can see these bamboo sticks are used so they can form a line. You can see, मतलब ये बैम्बू स्टिक्स यूज़ करते हैं ताकि ये जो पीपल हैं ये एक लाइन में डांस करे और अलग अलग फॉर्मेशन बना सके। जैसे आप डांस में डिफरेंट फॉर्मेशंस होते हैं, तो ये ग्राउंड पे बैम्बू स्टिक्स यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग दैट फॉर्मेशंस। नेक्स्ट वन, टोकपा, ओरिजिनली फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री ऑफ टिबेट। राइट डाउन द स्पेलिंग T-I-B-E-T, टिबेट। It is a very popular delicacy in Arunachal Pradesh. So it is a dish, you can see ये खाने की चीज़ है और ये कहाँ से आई है, तिब्बत से, और अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर है। A noodles soup, a noodles soup, it could be vegetarian or non-vegetarian. So you can see it is a noodle with soup. एक नूडल है जो सूप में डूबा हुआ है, और ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों में मिलता है। मोमोज, आई होप यू ऑलरेडी heard about it. Momos, it is a steamed dumpling prepared from white flour and meat vegetables. सो ये एक डम्पलिंग की तरह होता है। डम्पलिंग होता है जो हम कुछ भी फिलिंग उसके अंदर भर देते हैं और उसे पका के खाते हैं, और ये यूजुअली किससे बनता है, वाइट फ्लोर मतलब मैदे से बनता है, जिसके अंदर आप मीट वेजिटेबल कुछ भी पुट कर सकते हो। इट इज़ अ स्टीम्ड, स्टीम मीन्स स्टीम में पकाया जाता है, भाप में। राइट डाउन द स्पेलिंग STEAMED, स्टीम्ड, एंड इट इज़ वाइट फ्लोर। सेकेंड फिलअप इज़ वाइट। Adopted by the people of Sikkim from Tibet. So the momos is also from Tibet, T-I-B-E-T, Tibet. Now let's come to the next one. Khongampat Orchidarium. It is in Imphal in the state of Manipur. So Imphal is the capital of Manipur, you already knew that. So the first fill-up is Imphal and second one is Manipur. So it is kind of auditorium, ऐसी एक जगह जहाँ पे, जैसे आपने म्यूज़ियम देखा होगा वहाँ पे काफ़ी ओल्ड हिस्टोरियन चीज़ें पड़ी होती हैं, यहाँ ये एक ऐसा ऑडिटोरियम है जहाँ पे ऑर्किड फूल मतलब फ्लावर्स हैं डिफरेंट काइंड के, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, लोगों को देखने के लिए रखा जाता है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, इम्फाल में। कौन से स्टेट में, मेघालय में। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। इट हाउसेस ओवर 110 रेयर वेराइटीज ऑफ ऑर्किड। राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ ऑर्किड, ORCHID, ऑर्किड, अलॉन्ग विथ सम कॉमन वंस। सो यहाँ पे 110 टाइप के ऑर्किड फ्लावर्स है, और बाकी भी और भी काफ़ी फ्लावर्स हैं, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर म्यूजियम। सो आई होप यू गॉट दैट। नेक्स्ट वन, नीर महल ऑन रुद्रसागर लेक। सो द नेक्स्ट प्लेस इज नीर महल, लेट्स रीड अबाउट इट। लोकेटेड नियर अगरतला, located near Agartala in the Tripura, in the state of Tripura. So ये कहाँ पे है, त्रिपुरा स्टेट में, और जिसकी कैपिटल क्या है, अगरतला। वहाँ पे कौन सा महल है, नीर महल है। नीर महल लिटरली मीन्स
वाटर पैलेस, नीर का मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इसका मीनिंग होता है वाटर। सो इसका मतलब इस महल का क्या नाम है? वाटर पैलेस। मैनी माइग्रेटरी बर्ड कम टू द लेक इन विंटर। माइग्रेटरी बर्ड्स में जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं ड्यू टू वेदर कंडीशन, जो उन्हें वेदर सूट करता है उस हिसाब से वो उस प्लेस पे चले जाते हैं। सो दीज बर्ड्स समटाइम्स कम टू द नीर महल लेक, और वहाँ पे कुछ दिन निकालते हैं इन विंटर, सर्दियों में। राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ माइग्रेटरी, MIGRATORY, माइग्रेटरी बर्ड।